Charanji, let's begin our today's class in continuation to our previous lecture that was about subject verb agreement. I told you that in order to make a statement grammatically correct and logically sound, one needs to make sure that subject and verb be in agreement to each other. Subject और verb का आपस में compliance में होना, agreement में होना बहुत जरूरी है. And that is if you have a singular subject, it takes singular verb, whereas plural subject takes plural verb. For example, if I say the list of items is on the desk or are on the desk, so the correct option should be what? Is on the desk, because here we have list as a subject. And I've told you that whenever you have a compound noun, you always consider subject prior to preposition. Preposition से पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कंपाउंड नाउन में, बाद वालों को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते, right? Similar is the case. We had some other examples. The car that I bought has a power steering and a sunroof. You have a power steering. So what should it be? क्या था correct option? Has a power steering. And the reason is car is a subject here. जब car subject है, singular subject है, third person singular है, तो आप singular verb लगाओगे, आप plural verb have नहीं लगा सकते. Right? Same is the case. The representatives who are courteous sell the most tickets. Yeah, sells the most tickets. What was the correct answer? It should be sell, right? Because we have representatives as a subject और representatives एक plural subject है. जब subject plural है तो verb must be plural. Next one was a bouquet of yellow roses lend or lends color and fragrance to the room. What was the correct option? It should be lends. And the reason was bouquet as a subject or bouquet एक singular subject है. Whenever you have a singular subject, it takes singular verb. Next, a group of boys. सेल्स प्लरल नहीं होता, सेल्स सिंगुलर होता है. सेल सिंगुलर होता है, सॉरी, सेल्स सिंगुलर होता है और सेल प्लरल होता है, राइट? वर्ब में उल्टा है. नाउन को फ्लिप कर ले. नाउन एस नाउन में लगाया जाए तो नाउन प्लरल बन जाता है, वर्ब में लगाया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है. Next one, a group of boys has submitted an application. They have submitted. So it was has submitted because we are talking about a group, and group is a singular subject, so verb must be singular, right? ये बातें हमने last class में कर ली थी. Then we discussed fixed expressions which don't make subject plural. कुछ ऐसे expressions होते हैं जो subject को plural नहीं बनने देते, like along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by. ये कुछ ऐसे expressions हैं, ये अगर किसी subject के साथ लगे हों, so you will always consider subject prior to fixed expression. आप हमेशा उस एक्सप्रेशन से पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, बाद वालों को कंसिडर नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बिलाल along with his family, friends and fellows, so I would say is arriving. I won't say are arriving because I'll consider Bilal as a subject. बाकियों को मैं सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करूंगा, राइट? क्लियर थी ना ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फाइन. ऐसे ही नासिर accompanied by his fellows has checked into a hotel या have checked into a hotel. It was has checked into a hotel, and the reason is accompanied by से पहले आ रहा है नासिर, and we consider नासिर as a singular subject. जब subject singular, verb भी singular, subject plural, verb भी plural, right? Then the third component we discussed was gerund form as a subject. Gerund form जब भी subject के तौर पे use होगी, it will always be considered as a singular subject. Gerund form किसको कहते हैं भाई? ing form. I have told you earlier that ing form is considered as gerund form. ing form को gerund form कहता है, right? और जब भी वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी तो आप हमेशा उसको सिंगुलर कंसिडर करोगे. इट्स नॉट कंसिडर प्लरल एवर. कभी भी ये प्लरल कंसिडर नहीं की जाती. जस्ट लाइक यू से टीचिंग इज माय प्रोफेशन, यू वोंट एवर से टीचिंग आर. टीचिंग आर कभी भी नहीं सुना होगा ना तुमने. तुम बोलते हो स्विमिंग इज अ गुड एक्टिविटी, स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्टिविटी. यू वोंट से आर. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, राइट?
स्मोकिंग इज कहते हो ना, स्मोकिंग आर कभी भी नहीं सुना होगा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर की जाएगी, वी ऑलवेज कंसिडर इट एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है कि वो क्लियर कर दें कि एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब को हु कौन से क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई मैंने क्लियर बताया था बड़ा कि whenever you want to identify subject in a statement, make that statement a question by putting who or what before verb। ठीक है, by putting who or what before verb, verb से पहले who और what लगा लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, और जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल बात है। अभी इसकी आगे भी प्रैक्टिस करते हैं हम। फिफ्थ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूं, ओके। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है भाई, चूजिंग अ कैंडिडेट टेक्स टाइम, सो हियर वी हैव चूजिंग एज अ सब्जेक्ट, चूज करना कैंडिडेट्स को, राइट, मुंतखब करना। अब चूजिंग एज अ सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, आईएनजी फॉर्म है, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, वर्ब में आप ऐसे ही यस लगाओगे। क्लियर है भाई? चूजिंग अ कैंडिडेट टेक्स टाइम, यू वोंट एवर से टेक टाइम। गॉट इट? तो ये लॉजिक थी इसकी, जनरल फॉर्म एज अ सब्जेक्ट। अब आते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, नमाज का ब्रेक। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार चलो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर नमाज, क्लास स्टार्ट होती है और फिर ये ब्रेक आ जाता है। तो या तो मैं टाइमिंग थोड़े से चेंज कर दूंगा अगर आपको एतराज ना हो तो। अभी हमारी मेरी तरफ तो अजान हुई नहीं है, दूर दूर तक कोई असर नहीं है, लेकिन चार पांच लोग कह चुके हैं कि खैर चले नमाज का ब्रेक लें जी आप लोग। 6:30 पे फिर दोबारा आप ज्वाइन करें मुझे, 6:30 पे आप दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से जहां से अभी छोड़ा है। बस अब हुई है नहीं हुई, नमाज पढ़नी है ना भाई सबने अभी, क्या कर सकते हैं। तो नमाज ब्रेक टिल 6:30, 6:30 पे मैं शार्प स्टार्ट कर दूंगा दोबारा क्लास। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, मैंने खुद किया, आप चेक कर लीजिएगा।